Welcome to our sixth webinar in our World SDG webinar series. This webinar's topic evolved from our last fifth webinar, where the topic was innovative financing for SDGs. And we concluded that regardless of what the innovative financing was, if sustainable consumption and sustainable production was not looked into, no matter what the financing, it would fail. So that led to this particular webinar topic, sustainable production, sustainable consumption, which is goal number 12. The most important point to note in this discussion is that sustainability is in direct contradiction to modern society's emphasis on maximizing consumption and production with more and more efficient technologies. Sustainable consumption, sustainable production. It is a paradox that the countries that have endorsed the Sustainable Development Goals, and in the present context, Goal 12, responsible consumption and production, measure their progress and their citizens' well-being with the most efficient production methods that create more and more goods and more demand and more consumption. Change the current economic model and societal norms on consumption. A paradigm shift is required in the thought process of each one of us. Lifestyles for Environment, or LIFE, the initiative proposed by Honorable Prime Minister at COP26 in Glasgow on the 1st of November 2021, hopes to achieve this. LIFE puts individual and collective duty on everyone to live a life that is in tune with the earth and does not harm it. Those who practice such a lifestyle are recognized as pro-planet people under LIFE. However, it is our premise that for any hope of this becoming a universally acceptable proposition, spirituality is the key to its success. Spirituality emphasizes the oneness of man and nature, and Bharatiya Sanskriti encapsulates the conscious connection between man and nature, man and water, man and the forest, man and agriculture, man and the environment. Mahatma Gandhi said, nature is enough for everybody's need, but not for everyone's greed. Now I'll hand this webinar over to Amitabh. विषय के जो अगले जो केवल अपने हित के लिए ही प्रयोग करें, बहुत ज्यादा उसका दोहन ग्रीड के लिए नहीं करें। जैसे भैया ने अभी गांधी जी का उदाहरण देते हुए बताया था, अपने यहाँ क्या होता है कि हम जो भी जल स्रोत होते हैं उनकी पूजा अर्चन करते हैं, क्या पानी लेने से पहले करते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आज जुड़े हैं और एक बड़ा विषय लेने वाले हैं, अतुल जैन जी। वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि भावनात्मक लगाव जो चीज होती है अपने संसाधनों के प्रति या जो दोहन वाले तत्व हैं उनके प्रति, तो वो हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए ही प्रेरित करते हैं। जल के ऊपर एक बड़ा काम उनके नेतृत्व में उसमें दीनदयाल शोध संस्थान ने किया है, पोषण के विषय में भी, यानी कि जो देश के 125 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जिस तरह से फूडिंग हैबिट्स हैं, वो फूडिंग हैबिट्स भी हमारे कल्चर में इनकलकेटेड थी और उन कल्चर के माध्यम से ही उन चीजों का कंजर्वेशन हो रहा था। जो प्रमुख वक्ता है आज के इसमें, अब दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन जी बहुत एकात्म मानव दर्शन पर एक अथॉरिटी है देश में। और जैसा मैंने अभी बताया कि जल और संस्कृति के विषय में जो भावनात्मक लगाव है उसके एक अध्येता है, मतलब उनके ही नेतृत्व में हम लोग समझ रहे हैं उन चीजों को, और बहुत कुछ जो हमारा ज्ञान डेवलप हुआ वो अतुल जी के ही माध्यम से डेवलप हुआ है। पूरे देश भर में एक अलग जगाई है उन्होंने इस चीज के लिए। वैसे पत्रकार रहे हैं बहुत लंबे समय तक, वो भी उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, और उसके नाते जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को नानाजी के साथ भी लगभग 30-32 साल से जो दीनदयाल शोध संस्थान का साहित्य विकसित हुआ उसमें उनका बहुत योगदान रहा। तो ऐसे अपने प्रधान सचिव जी अतुल जैन जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। उसके बाद दीनदयाल शोध संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने गांव में बहुत लंबे समय तक काम किया है, वो एक विषय के ऊपर अपना वक्तव्य रखेंगे उनके बाद में। तो एक जस्ट जो हम एक इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं कि अपनी इन चीजों का, तो आज की पैटर्न इस तरह से रहेगा
कि पहले अतुल जी जो मुख्य वक्ता हैं वो इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद में हम ये 3-4-5 विषय हैं उन पे एक एक बार चर्चा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अतुल जैन जी को। नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम और धन्यवाद अमिताभ जी, आपने थोड़ा मेरा ज्यादा वो दे दिया, मेरी बात छोटी करने वाला था, आपने बड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन मेरा दे दिया इनफैक्ट, तो मुझे उसके अनुरूप उतरने की कोशिश करूंगा। मैं अभी लिस्ट देख रहा था अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं और मुझे ऐसा लग रहा था वसंत भैया से मैं इसके लिए परमिशन चाहूंगा। भैया, द प्रेजेंटेशन इज ऑफ कोर्स इन इंग्लिश, but I think since most of the people who have joined us would be more comfortable. Whichever language you prefer, भैया, कोई so, no so presentation would be in English, but मैं आपके साथ interact हिंदी में बातचीत करूंगा और फिर हम लोग धीरे धीरे बीच में जहां जरूरत होगी बातचीत उसको आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसा अमिताभ जी ने अभी बताया कि आज श्रद्धेय नानाजी देशमुख का हिंदी पंचांग के अनुसार उनके प्रकटोत्सव है, तो उनको हार्दिक श्रद्धांजलि के साथ हम सब लोग नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत दीनदयाल शोध संस्थान के वंडर वर्ल्ड में करता हूं, जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस थियोरी का, जिस फिलॉसफी को प्रपोंड किया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसको अगर हम देखें तो नानाजी ने बहुत एक ग्राउंड पर उसको वैलिडेट करने का जो काम किया, उसमें से दो पर्टिकुलर इश्यूज पर, दो पर्टिकुलर जो मंत्र जिनको कहे नानाजी ने, करे देशानुकूल और युगानुकूल, वो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए वर्ड्स हैं और हम लोग उसी मंत्र पर काम करते हैं। तो हम लोग कल्चरल रूट्स में अपने कैसे जुड़े रहे, तो हम अपनी कल्चरल रूट्स में रहकर काम करें तो उसको हम लोग कहते हैं देशानुकूल, और हम लोग अपने समय के साथ आगे चलते रहें तो हम उसको कहते हैं युगानुकूल, मतलब मार्चिंग इन ट्यून विद द प्रेजेंट। तो इसलिए जब हम लोग देखें कि 2015 में यूएन ने अपने गोल्स जो थे, एसडीजी गोल्स, जब उन्होंने अडॉप्ट किए, तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो 25 सितंबर था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन था, जन्मतिथि थी उनकी। हिंदी वो तो अंग्रेजी उसके हिसाब से थी, इंग्लिश कैलेंडर के। और हम लोगों ने जब उसको एनालाइज करने की कोशिश की कि कौन से गोल्स क्या थे, तो पूरा का पूरा ऐसा लगा कि अरे ये तो अपनी ही बात थी जिसका हम पंडित जी जिसका जिक्र किया करते थे। तो उसको उस फ्रेमवर्क में अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसका जो फ्रेमवर्क है, बड़ा फ्रेमवर्क है, उसपे उन गोल्स को रखकर आराम से देखा जा सकता है और वो उसकी बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे उसका आईना है, उसकी मिरर इमेज है। नानाजी ने उसको वैलिडेट करने की जो कोशिश करी, तो उसके हिसाब से फिर 1978 में हम लोग दीनदयाल शोध संस्थान में ग्रामीण विकास के काम, पहले ये सारा का सारा जो काम चलता था वो सारा का सारा काम इंटेलेक्चुअल लेवल पर था 1968 से, लेकिन उसके बाद में फिर ग्राउंड लेवल पर ग्राम संरचना के, ग्राम नवरचना के काम जहां पर शुरू हुए और एक समग्र ग्राम विकास का मॉडल कैसे डेवलप हो उसको करने का नानाजी ने एक बीड़ा उठाया, जिसका केंद्र बना चित्रकूट, जहां से आज हम लोग बैठकर अधिकांश लोग बातचीत कर रहे हैं। सोशल आर्किटेक्ट कपल्स इसका एक केंद्र बिंदु है। और हमने एक चीज और देखी इस चीज में कि जितने भी एसडीजीज हैं वो एक बहुत उदात्त, उसमें जिसको अंग्रेजी में सबलाइम कहेंगे, बहुत श्रेष्ठ रूप में और भारतीय संस्कृति के अनुरूप अगर हम देखेंगे उनको, तो वो सारे के सारे एकात्म मानव दर्शन के फ्रेमवर्क में बैठते हैं। वसंत भैया भी कह रहे थे और अमिताभ जी भी कि स्पिरिचुअलिटी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है।
हम भी ऐसा ही मानते हैं सब लोग, और वो तो हमारा पूरा का पूरा फिलॉसफी का अधिष्ठान ही है। बिना स्पिरिचुअलिटी के तो ये चीजें सामने आती भी नहीं। पंडित जी ने जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की व्याख्या की, उन्होंने बार बार इस चीज को कहा कि मैं कोई नई चीज देश या दुनिया के सामने नहीं रख रहा हूं। हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी सोच में, हर चीज में ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी समाई हुई है। तो जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसके एसडीजी गोल्स 17 आए, तो हमें लगा कि ये 17 तो एक हमारे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का छोटा पार्ट है, इससे भी बहुत विशाल है जो अपना एकात्म मानव दर्शन का जो दुनिया है। और उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्म जो है, वो तो बहुत बड़ा एक कैनवस है, जिसमें हम कहीं छोटे छोटे बिंदुओं को रखकर देखें तो कुछ 17 एसडीजीज हम लोगों को उसमें से नजर आते हैं। आज हम लेकिन बात अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एसडीजी 12 पर, क्योंकि वसंत भैया ने बताया कि पिछली बार जो भी हम लोगों का हुआ था, आप बोलते थे एक मिनट होगा। नहीं, वो अमिताभ है, आप बोलते थे। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे आज सिर्फ एसडीजी 12 पर। एसडीजी 12 स्पिरिचुअलिटी का इन 17 बिंदुओं में से, इन 17 जो गोल्स हैं, उनमें से स्पिरिचुअलिज्म जो आता है भारत की दृष्टि से पर्टिकुलरली, वो एसडीजी 12 में ही आता है, जहां हम कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पंडित दीनदयाल जी ने इसको एक नाम दिया था, उन्होंने कहा था मर्यादित उपभोग, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। उसके अंदर विशेष तौर पर यह था कि जब हम अपना उपभोग करते हैं, जो हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वहां हमें सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से अपने आप को रिस्ट्रेन करने की जरूरत है, वहां क्या मर्यादाएं बरतने की जरूरत है। और जब हम इन मर्यादाओं की बात करेंगे तो हम अपने आप ही उसमें से जज नहीं करना है, छोटा पॉइंट। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम प्रकृति के साथ अपने आप को कैसे एकात्म कर सकते हैं। प्रकृति के साथ एकात्म करना हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है, कि हम उसी के साथ अपने दुनिया को, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या दे पाए, ये हमारे सामने एक उद्देश्य भी रहता है। तो इसमें से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जो है, वो एक शब्द निकल कर आता है। और जब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा, तभी उसमें से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कर पाएंगे। कम करेंगे, कम चीजें लेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एफिशिएंटली उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी अपने आप आएगी। जिस स्पिरिचुअलिज्म की हम बात कर रहे हैं, हम अपने यहाँ घर में रोजाना ऐसा महसूस करते होंगे, पर्टिकुलरली महिलाएं, कि एक शब्द अपने यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तेन तकतेन बुंजिता, यानी हम उपभोग चीज का भी करें, एक त्याग की भावना के साथ में करें। तो जैसा हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, वहां एक स्वामी जी भोजन कर रहे हैं, तो पहले वो अलग अलग गोग्रास भी निकाल रहे हैं, दूसरे जीवों के लिए भी निकाल रहे हैं, अपनी पुण्य आत्माओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भी निकाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फिर बाद में अन्य जीवों को दे दी जाती हैं। इसमें एक भावना रहती है हमेशा एक त्याग की, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो हम इसमें से स्पिरिचुअलिज्म जो है वो अपने आप ही एक निकल कर आता है। और हमारे जो परसूट्स हैं इन सब चीजों के लिए जरूरी करने के लिए, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म को हम जिस रूप में आज सुनते हैं, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन रिलीजन कर दिया जाता है, तो वो नहीं है। वो हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, हमारे इनेट वैल्यूज हैं, कि हम लोग
क्या जिंदगी भर में अपने जीवन मूल्य सीख कर आ रहे हैं। हमारे लिए इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बात करते हैं कि नहीं नहीं हमें पैसे का कोई मोह नहीं है। ओके, मोह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्थ के बिना भी काम चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मोह नहीं है तो उसका यह है कि अर्थ वो धर्म से प्रेरित होगा तो हम उसमें मोह में नहीं पड़ेंगे। फिर हम कुछ भी काम करें, उस काम में आनंद लेना, उसमें मस्ती से काम करना, ये हमारा एक विषय आता है काम शब्द। इसके लिए अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो चतुष्ट पुरुषार्थ हैं, जिसका नाना जी बार बार जिक्र किया करते थे, उनमें से वो काम शब्द आता है। मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर भावना आती है कि मृत्यु के बाद ही हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन अपनी भारतीय दर्शन में कहा गया कि ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में भी, अपने जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें होता है कि हम परफेक्शन कैसे करें, हम हर काम को किस तरीके से कितने परफेक्शन के साथ करेंगे, तो हम उसका अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन जो है वही हमारे लिए मोक्ष होगा। उसी में से निकल कर आएंगे हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स, उसमें हमारी एफिशिएंसी, उसमें हम कितनी से कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसा ले पाएंगे। एक बात जब ये आती है कि हम कंजम्पशन कम करेंगे तो लगता है कि हम स्कार्सिटी मतलब कम चीजों में भी संतोष करेंगे। हम उसमें कोई बहुत संतोष करेंगे, यस ओके, लेकिन हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, इसका भाव ऐसा कहीं नहीं होता है। हम जब खूब होता है, प्रचुरता होती है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अपने यहाँ पर कुछ गीत ऐसे रहे हैं कि जिनमें हम लोग जब देखते हैं कि हमारे को बहुत सारा मिले तो हम लोग उसमें से किस तरीके से सबको बांटें और सबके साथ में बांटने के बाद जो कुछ हमारे पास बचे वो हम उसका उपभोग करें। आपके सामने एक गीत है, उसका नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ये गीत जो है ये तो राजस्थान का गीत है, लेकिन इस यही गीत, लगभग इसी भाव का गीत पूरे देश भर में अलग अलग भाषाओं में होता है। राजस्थान में इसको स्यावड़ माता का गीत कहते हैं। मैं इसको बहुत पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका भाव ये है कि जो माता से जब ये नीचे दो किसान और किसान की पत्नी जब बुआई कर रहे हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इतना उत्पादन करना, जिसमें लिखा है ना कि हमको पर्याप्त उत्पादन खाद्यान्न का करना कि सबको दे सकें। मतलब इसमें चोर उच्चकों तक के लिए व्यवस्था की गई है, सरकार के खजाने में भी दे सकें, साधु संत को भी दे सकें, अपने रिश्तेदारों को भी दे सकें, और अगर कुछ बच जाए तो हमारे बच्चों को दे देना। तो ये त्याग की भावना जो होती है, बस you had asked me 30 minutes. No, 30 minutes is the session भैया, 12 मिनट is the... Okay, तो मैं 2 मिनट में ही, क्योंकि कहा है खत्म करने को, तो 2 मिनट में खत्म करता हूं। तो इसमें से हमारा सिद्धांत आता है अन्नम बहु कुर्वीत। ये हमारे यहाँ बताया गया है कि हम किस तरीके से खूब सारे अन्न का उत्पादन करें, लेकिन हर चीज को जब करें तो त्याग की भावना के साथ करें। और त्याग की भावना करने के लिए जिस गीत का मैंने आप लोगों को अभी ऊपर उल्लेख किया, वो गीत आपको, जैसे मैंने बताया, हो सकता है आपके अपने अपने भी क्षेत्रों में इस चीज को सुनने को आता होगा। इसमें से हमको एक संतुलन बैठाना पड़ता है इस परफेक्शन हासिल करने के लिए, जो पंचज के मॉडल से निकलता है। जन जंगल जानवर जमीन, हम लोग उस सब पर प्रैक्टिस भी करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से। और उसके लिए सबसे जरूरत की आवश्यकता जो होती है वो होती है अपने नेचुरल रिसोर्सेस के साथ एक भावनात्मक लगाव बनाना, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करना। नेचर को किस तरीके से हम सिर्फ संरक्षण ना करें, उसका संवर्धन भी करते रहें, इस सब चीजों की आवश्यकता रहती है। तो अब समय इतना ही है, हम लोग फिर दोबारा कभी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि इसमें तो मेरी करीब करीब 68 स्लाइड्स थी, मेरे ख्याल में 18 में निपट गए हैं अपन। तो हम दोबारा इस पर आगे चर्चा करेंगे।
आप सबको नमस्कार, और जब सवाल जवाब होंगे तब अपन बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। जो विषय अभी अपने प्रधान सचिव जी ने रखा, दीनदयाल शोध संस्थान के जो इनके ऊपर जो व्यवहारिक प्रयोग हैं, जो जमीन पे धरातल पे हुए हैं। जी बाप जी, वसंत, आवाज आ रही है? जी आवाज बाप आ जी, रही है? नानाजी देशमुख 107 में ब्रह्म ऋषि नानाजी को मेरा प्रणाम, और अतुल भाई जो भी आए सबको मेरा आशीर्वाद। हमें नानाजी के इस 107 साल पर पेड़ लगाना है, पर्यावरण को बचाना है। आज ग्लोबल में बर्फ खत्म हो रहा है पेड़ों की वजह से। पेड़ को जड़ से नहीं काटना है, बचा करना है। देशवासियों को कहना है इस समय में जो प्रदूषण खराब होता जा रहा है, इसमें हमें पर्यावरण के जो साथ देंगे तभी ये पर्यावरण का दोष खत्म हो। पेड़ों की रक्षा भगवान की रक्षा है। पहले ऋषि महात्मा पेड़ लगाते थे तालाब में, गांव में, सब जगह वही काम करते आ रहे थे। अब आप संस्थान ने शुरू करा है। पहले हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान था, अब हमने हरियाणा राजस्थान कर दिया है पेड़ लगाकर। आपको ही कहना चाहता हूँ कि नानाजी की 107 जन्मदिन के ऊपर में पूरे अन्ना में, एमपी में ऐसा काम करें, उत्तर प्रदेश चित्रकूट में गाँव गाँव में पेड़ लगावे और तालाबों को बचा करके उस किनारों में, और पेड़ को जड़ से न काटे। ऊपर से काटे पेड़ वापिस आ जाता है और छाया देता है। उपाधि बड़ा हमारा राजस्थान मेहंदी का पेड़ है, काटते फिर वापिस आ जाता है, जड़ से नहीं हटाना है। नानाजी एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि थे जिन्होंने देश के अंदर मानव सेवा करी है। जिंदा जी उन्होंने मोक्ष देखा है। मोक्ष क्या होता है कि नानाजी मानव की सेवा करी, गरीब की सेवा करी, आत्मा का आशीर्वाद लिया, वही मोक्ष होता है। मरने के बाद लेटर मोक्ष नहीं आता है कि मैं मोक्ष में हूँ। नानाजी के बताए मार्ग में चलना है। अतुल भाई, अबे भैया, औसत पंडित, पूरी समिति को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। और 107 आज नानाजी के दिन में मनाने जा रहे हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमें पर्यावरण को बचाना है, खाद्यान्न को बढ़ाना है। और हिमालय जो गल रहा है, इसीलिए गल रहा है, ग्लोबल खराब हो रहा है, पर्यावरण वहां नहीं है, गंदा पर्यावरण हो रहा है। आप हम सबको नानाजी की आज 107 पर, अभी अतुल भाई ने बोला, बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं और संत भी भूखा ना जावे। पैसे धन कमाओ, धन बिना काम चलता नहीं है, पैसा भी चाहिए। पुरुषार्थ करो, संत सेवा करो, शिक्षा में लगाओ, गरीबों में लगाओ, अनेक काम करो। मानते जीवन के अंदर मनुष्य जल में ऐसा जन्म है, इसके अंदर हमें करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो मरने वाला मोक्ष नहीं, जिंदा जी पा सकते हैं। वो सब कभी कहता है कि मोक्ष नहीं चाहिए, मरने वाला जिंदा चाहिए। तो जिंदा मोक्ष देखना है तो मानव सेवा करनी है। ये मेरा आशीर्वाद। और मैं खूब खूब चित्रकूट नानादेश मुख्य समिति को, कार्यकर्ता को, अबे भाइयों को, सबको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छे काम करने जा रहे हो। नानाजी खुश है, वो गए भी आज यही है कि वो तो चित्रकूट में रहते हैं, मोक्ष नहीं उनके पास, तो मानव सेवा है। तो यही मेरा आशीर्वाद है, मानव सेवा करो और पर्यावरण को बचाओ। ठीक, आवाज आई? जी 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 स्वामी जी, जी स्वामी जी। अतुल भाई का अतुल दूसरा कमरा गया बाप जी, वो है, सुन रहे बाप जी। अच्छा, बोलना, सबको आशीर्वाद बोलना, ठीक है? बस जी बाप, समझ आई? मारवाड़ी भाषा नहीं आई? आ गई? जी जी बाप जी, जी आ गई, ठीक है। बहुत बहुत आभार पूजनीय बाप जी। आज आपका आशीर्वचन आज के दिन हम लोगों को मिला, और जिस तरह से आपने श्रद्धेय नानाजी के विषय में आज हम लोगों के बारे में रखा, आपके विचार हम लोग पहले से ही उसके विषय में जानते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे कामों के प्रति भी, आपका आशीर्वाद सतत रूप से है। पूरा आशीर्वाद। जी जी जी, आज आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ से सबकी ओर से आपको सादर प्रणाम भेजते हैं, सब लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद। जी जी जी। चलो आगे ले लो। पूजनीय
पूजनीय बाप जी को अभी हमने सुना, और जैसा अपना ईसावास्य उपनिषद में कहा गया, जिसका एक पंक्ति अपने अतुल जी ने कहा था तेल त्यक्तेन भुंजी था, पूरा ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेल त्यक्तेन भुंजी था मां ग्रहण कस्यचिदम्। यानी जड़ चेतन प्राणियों वाली ये समस्त सृष्टि परमात्मा में व्याप्त है, मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, परंतु यह सब मेरा है कि भाव से उसका संग्रह नहीं करे। तो ये इसके लिए जो स्पिरिचुअलिटी की बात आज हो रही है, जो स्पिरिचुअलिटी का स्वामी जी ने भी कहा कि वृक्षों का हम उतना ही दोहन करें जितना आवश्यक है, ऊपर से अगर उसको फल देने के लिए वृक्ष हैं, पर उसको पूरा काटने के लिए, यानी कि उसको रीजनरेट होने के लिए भी हमें मौका देना चाहिए। तो जैसा शुरुआत में भी कहा कि ग्रीड के लिए नहीं है, नीड के लिए हम प्रकृति का दोहन कर सकते हैं। यही हमारा स्पिरिचुअल जो गुरु है, जो हमारा धर्म है, चाहे जो भी इस धरा से निकले हुए धर्म है, वो सभी यही सिखाते हैं। अगर इन दोनों चीजों पे स्वामी जी ने जो विषय रखा उस पर, और अतुल जी ने जो विषय रखा उसके ऊपर, अब आज जो पैनल में लोग जुड़े हैं या बाहर से भी अतिथि जो अपने जुड़े हैं इस वाले वेबिनार में, तो कोई अगर प्रश्न पूछना चाहें तो वो सादर आमंत्रित है। अदरवाइज फिर हम जो हमारा ग्राउंड पे काम है उससे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। स्वामी जी's full name is Senacharya Swami Achalanand Ji Giri Maharaj from Jodhpur. ये बार हम लोग ने सोचा था कि बिकॉज ये विषय इतना संस्थान के साथ जोड़ा हुआ है, और हम लोग for the last 25 years we've been working on this on the field, we thought this time we would take a little more participation than we normally do in the webinars. So some of the interventions that we do on the ground that are connected to sustainable production, sustainable consumption, we'll just encapsulate them in 2 minutes each. Amitabh, सीमा जी से स्टार्ट करना। श्रीमती सीमा पांडे जी बहुत लंबे समय तक यहाँ दीनदयाल शोध संस्थान के कामों में रही हैं, और आज उन्होंने इसका एक तरह से आत्मसात कर लिया, जो भी एकात्म मानव दर्शन और श्रद्धेय नाना जी ने जो सिखाया है। तो डॉक्टर अशोक पांडे जी और सीमा पांडे जी प्रारंभिक जो समाज शिल्पी दंपति हैं उनमें से एक है, और पिछले लगभग 30 वर्ष से दीनदयाल शोध संस्थान की सेवा में है, और इस विषय पर मतलब उनसे अच्छा वक्ता कोई हो नहीं सकता। मैं सीमा दीदी से निवेदन करूंगा कि वो जो गतिविधियां गर्भस्थ शिशु संस्कार, बाल संस्कार और श्रद्धा पर्व की गतिविधियां हैं उनको 2 मिनट के अंदर बताएंगी। समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सीमा दीदी। I don't know where she is. I'll find it next. चलिए, कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा चित्रकूट का जो क्षेत्र है वहां पे कनेक्टिविटी की दिक्कत रहती है। अखिलेश जागरे जी, हेमराज द्विवेदी जी, कोई सुन रहा है इसमें? कोई? अखिलेश जागरे जी, आप ये 1.5 एकड़ डाइवर्सिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मॉडल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति के रिजर्विनेशन के लिए, और जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन की हम लोग बात करते हैं, तो जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है वो है क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड प्रोसेस एंड सिस्टम दैट आर नॉन पॉल्यूटिंग, कंजर्विंग एनर्जी एंड नेचुरल प्रोसेसेस और इकोनॉमिकली वायबल। तो ये 1.5 एकड़ का जो डाइवर्सिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मॉडल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑफ द लेट अभी नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन की ही एक प्रयोग है। जल्दी से अपनी बात रखेंगे। हेमराज द्विवेदी या अखिलेश जागरे? अखिलेश जागरे जी। अखिलेश जागरे जी, बोलिए आप इस पे। जी नमस्ते भैया। आज का जो विषय है 1.5 एकड़ मॉडल का, ये माननीय नाना जी की एक परिकल्पना थी, जिसमें कि उनका परिकल्पना में ये था कि हर गांव का कृषक इस मॉडल को अपनाए और बाजार पे आश्रित ना रहे,
और कृषक अपना उत्पादन इतना करे कि बाजार से सिर्फ उसको नमक खरीदने की आवश्यकता हो, बाकी उसकी जरूरत की जो भी चीजें है वो अपने 1.5 एकड़ मॉडल में उसको समावित करे, जैसे अपनी अनाजी फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जियां, फलदार पौधे और साथ में गाय या भैंस दोनों में से किसी एक का पालन करे। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल डेवलप करना, जिससे कि उसकी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ऐसे ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे जो 49 अब जाएगी सर, आवाज आ रही है? किसी का कोई हेलो, साथ में कोई खुला हुआ है, कहीं पे 2 खुले हुए हैं, आप एक कोई बंद कर लें। हेलो, आ रही है अखिलेश जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जी नहीं जी जी जी। तो ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल डेवलप करना था, जिसमें कि कृषि से संबंधित या कृषि से उत्पाद जो तैयार हो रहा है उससे बाजार पर आश्रित ना रहना पड़े, और बाजार की जो उपलब्धता जो आज किसान हो गया है उस मॉडल के माध्यम से उसे कम कर सके। इसी के रूप में जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि फलदार वृक्ष हो गया या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, इसका इम्पेक्ट ये है कि हम माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, इसको दूर करने में मदद कर रहा है। साथ में जो हमारे किसान है इसको रोजगार स्थापित हो गया है, और इसका जो मूलभूत जो था कि कम एरिया में हमारा जो एरिया में प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना था, और साथ में हमारे जो युवा है या जो हमारे फार्मर है उसकी जरूरत की सारी चीजों का उस फार्म पे प्रोडक्शन करना था। साथ में हमारे जो 49 स्वावलंबन केंद्र है, इसी सारे स्वावलंबन केंद्र पर ये 1.5 एकड़ मॉडल का जो कंसेप्ट है सभी जगह फॉलो कर रहे हैं और सभी किसान इसको कर रहे हैं, और साथ ही इससे जो उत्पादित है इससे फार्मर भी सेटिस्फाइड है और अपनी जरूरत की सारी चीजों का ये 1.5 एकड़ मॉडल में समावित कर रहा है। इस तरीके से हम इस पे काम कर रहे हैं। जी सर। अखिलेश जी, आप हो गया आपका विषय? जी 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 अखिलेश जी ने जैसा बताया कि 1.5 एकड़ का मॉडल, और यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जब बात करते हैं तो यानी कि कितने कम से कम में हम अपना अच्छे से गुजारा कर सकते हैं, तो उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण था बताया उन्होंने 1.5 एकड़ मॉडल के बारे में भी। जो आज प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने ने बताया कि नाना जी बात किया करते हैं कि हम लोग स्थानीय स्तर पर उत्पादन और अपने स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, तो ये बहुत जरूरी है सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण था ये। और अभी सीमा दीदी शायद जुड़ गई हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी वाला जो एस्पेक्ट अभी चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, उस विषय से संबंधित बाल संस्कार, गर्भस्थ शिशु संस्कार और श्रद्धा पर, ये 3 गतिविधियां दीनदयाल संस्कार समाज सेवी दंपति योजना के अंतर्गत करता है। और उस विषय में मैंने जैसे ही परिचय पहले दे चुका हूँ सीमा दीदी का। सीमा दीदी, आप जल्दी से अपनी बात बताएंगे। जी भैया, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, बताइए। जी, हम लोग समाज शिल्पी, जो हम लोग गांव में जब रहते हैं तो गांव को संस्कारित करने के लिए और जागरूकता के लिए, परिवार संस्कारित हो, इसके लिए हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। श्रद्धेय नाना जी की भी नेत है कि गांव संस्कारवान बने। गांव संस्कारवान बनेगा तो अपने आप समाज में परिवर्तन होगा। इसके लिए हम लोग गर्भस्थ शिशु संस्कार करते हैं। जैसे हम लोग को पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है तो हम लोग उनको बताते हैं कि 9 महीना कैसे रहना है, उनका आहार विहार कैसा हो, और जो भी हम लोग उनको आहार विहार बताते हैं वो स्थानीय संसाधन के आधार पर बताते हैं जो उनके घर में उपलब्ध हो। जैसे हम लोग को पता चलता कि वो बहन गर्भवती हुई है, हम लोग तुरंत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और महिला मंडल के सब लोग मिलके उनका गर्भस्थ शिशु संस्कार करते हैं कि जो अपना बच्चा है वो समाज का बच्चा है, केवल एक आप ही का ही बच्चा नहीं है। और उनको 9 महीना कैसे रहना है, अच्छा वातावरण उनके घर परिवार का हो, इसके लिए हम लोग गर्भस्थ शिशु संस्कार करते हैं। और उनमें हम लोग उनको कहानी भी बताते, कैसे अभिमन्यु गर्भ से ही सीख लिए थे। इस तरह छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग गर्भस्थ शिशु संस्कार करते हैं। आगे हम लोग बाल संस्कार केंद्र करते हैं, उसमें जो भी बच्चे गांव के हैं
जो अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हैं, उनको हम लोग बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से संस्कारित करने का कार्यक्रम करते हैं। 2 घंटा का हम लोग बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, सुबह या शाम भी हो सकता है। उसमें हम लोग बच्चे को नैतिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनको योग, खेल खेल में शिक्षा, क्योंकि वही आगे चल के बड़े होंगे और गांव के, परिवार के, गांव के, समाज के, अपने देश के अच्छा नागरिक कैसे बने, वो बचपन से ही हम लोग उनको संस्कार देंगे तो अच्छा नागरिक बन सकते हैं और अपने पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उनको हम लोग जन्मदिन में प्रेरित करते हैं कि एक पौधा लगाएं और इससे घर का, गांव का वातावरण जो है हरियाली रहेगा। इस और हम लोग उसमें जो बच्चे यदि कमजोर भी हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, पूरे गांव समाज के लोग मिलके। बाल संस्कार के माध्यम के द्वारा ही हम लोग व्यक्तित्व विकास शिविर भी करते हैं, जो बच्चे चित्रकूट आते हैं और आगे भी वो निकलते हैं। क्योंकि गांव में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ये लोग संस्कारित होंगे तो पूरा गांव ही संस्कारवान बनेगा। बुजुर्गों के लिए हम लोग श्रद्धा पर्व करते हैं। इसमें जो उनके बेटे बहू रहते हैं, उनके घर के जो भी सदस्य रहते हैं, वो जो आजकल देख रहे हैं लोग अपने बुजुर्गों पर ध्यान नहीं देते, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों का मान सम्मान उनका घर में हो। जब घर के लोग मान सम्मान करते हैं तो गांव समाज के लोग अपने मान सम्मान उनको देने लगते हैं। तो इसके लिए एक दिन हम लोग कार्यक्रम तय करते हैं उनके अनुसार ही कि कब उनको समय है, उनके बेटा बहू, उनके घर परिवार के जितने भी बच्चे रहते हैं और जो भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहते हैं, तो एक दिन हम लोग सार्वजनिक स्थल में तय करते हैं, सब कोई मिलके। इसमें तरुणोदय मंडल भी रहता है, महिला मंडल भी रहता है और ग्राम समिति के सदस्य भी रहते हैं, ग्राम संयोजक दंपत्ति भी रहते हैं। सबके माध्यम से हम लोग, कोई भी काम अकेले नहीं होता, पूरे गांव के लोगों के सहयोग से भी कोई सब काम गांव में हो जाता है। इस तरह के छोटे छोटे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इससे गांव में परिवर्तन होता है। जब महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग संस्कारित हो जाते हैं तो कोई भी गांव में समस्या नहीं रहती है। कोई समस्या होगी भी तो गांव में अपने आप उसका समस्या का समाधान हो जाता है, कोई विवाद भी नहीं रहता। क्योंकि जब गांव में संस्कार एक वातावरण बन जाता है तो कहीं भी कोई भी आपको समस्या नहीं नजर आती है। श्रद्धेय नाना जी की भी इच्छा यही थी कि परिवार संस्कारवान बनेगा तो गांव, समाज और देश अपने आप संस्कारवान बन सकता है। और इसके हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। आप लोग जब भी इच्छा हो जिसको भी, तो अपने गांव में आके देख सकते हैं। इस तरह के हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। इतनी बात कहकर वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। अमिताभ जी, हाँ, अमिताभ जी, जो सीमा जी ने बताया था, जो स्पिरिचुअलिटी के बात करते हैं, अच्छा, वो गांव में जो सोशल कॉन्शियसनेस पे दो आसपास में चल रहे हैं, मतलब वो एक बंद कर लें अपना। जो भी सोशल कॉन्शियसनेस की बात होता है, when we awaken the social consciousness in the villages, we make them be a little more spiritual. And when they are a little more spiritual, then we can now talk to them about sustainable production and sustainable consumption. To create an atmosphere in the village where these programs can be implemented, we need to first do these programs that would make the village one. So that's why this particular topic is very important for both sustainable production and sustainable consumption. Amitabh, next speaker. तो जल वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर राजेंद्र सिंह जी अगर तैयार हो तो राजेंद्र सिंह जी अपना रखेंगे जो हमारा प्रयोग है जल संरक्षण के विषय में। और जी भाई जी, नाना जी जब 90-91 में आए और वहाँ उन्होंने यहाँ के गांव वालों से बातचीत की, यहाँ सर्वे किया, तो एक ही समस्या उनको समझ में आई, वो अभी पानी। एक तो पेयजल की समस्या, दूसरी सिंचाई की समस्या। इसके समाधान के लिए नाना जी कोई बाहर से इंजीनियर नहीं लाए, उन्होंने यहीं के गांव वालों से बैठ के बातचीत की, यहाँ के बुजुर्गों से बातचीत की, उनको लेकर यहाँ का सर्वे कराया, यहाँ का वातावरण देखा उन्होंने, यहाँ का भूमि का स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने सोचा कि ये काम एक व्यापक स्तर पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शुरू में 17 गांव लिए। 96 में यह काम शुरू हुआ और
इसके बाद उन्होंने कुछ सरकार का भी सहयोग लिया और ये काम बहुत द्रुतगति से शुरू हुआ और रिज टू वैली जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। क्योंकि ये पहाड़ी पथरीला इलाका है तो सबसे पहले जो पहाड़ का पानी सीधे आता था तेजी से और नीचे चल के वो आगे बहकर चला जाता था, रुकता नहीं था। तो उसको रोकने के लिए रिज टू वैली ट्रीटमेंट शुरू किया और गांव वालों ने इस पर भरपूर मदद की। उसके लिए उन्होंने समितियां बनाई, गांव-गांव में समितियां बन गई और उसके माध्यम से काम शुरू हुआ। पहले गांव में 2 मिनट जी लंबा मत करना, जी। आराम से बता 2 मिनट में। पहले गांव में जो पहाड़ों के जो पत्थर थे उसके छोटे छोटे पत्थर, उसका लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। जो पहाड़ों पर छोटे छोटे नाले थे, धाराएं थी, उन पर स्ट्रक्चर बनाया। इसके बाद धीरे धीरे नीचे ट्रीटमेंट करते हुए उस पर पहाड़ों पर लूज कंटूर ट्रेंचेस बनाए गए जगह जगह पर। और फिर नीचे जैसे आए तो नाले का जो स्वरूप हुआ वहां पर उन्होंने मिट्टी और पत्थर की दीवार खड़ी की, जिसको हम नाला बंधान भी कहते हैं। फिर उस पानी को आगे रोकने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए, उसके आसपास चारागाह प्लांटेशन का पूरा काम हुआ। इसी तरह से कंटूर ट्रेंचेस पर भी पौधे लगाए गए और उसका परिणाम ये हुआ चारागाह बनाए गए। और ये सारा काम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि पानी धीरे धीरे रुकने लगा और जहाँ पानी पीने को नहीं मिलता था, सिंचाई का नहीं मिलता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि पानी जब रुकने लगा तो यहाँ पर 2 साल बाद उसका परिणाम देखने को मिला। और जहाँ पर पीने को पानी नहीं था वहाँ कुओं में पानी आ गया और 5 से 6 फीट वो पानी मतलब रहता था और हाथ डाल के रस्सी से डालकर वो पानी खींच सकते थे। इसका परिणाम पटनी में देखने को मिला। बिछियन, तागी, कररिया, खोड़री में इसका अविस्मरणीय परिणाम हुआ और वहाँ के ट्रीटमेंट से तो इतना अच्छा काम हुआ कि नीचे के 12 गांव भी प्रभावित हुए और 3-3 फसलें, जहाँ एक भी फसल नहीं होती थी वहाँ 3-3 फसलें हुई। पानी का जल स्तर बढ़ गया और धीरे धीरे गांव खुशहाल हुआ। जो बाहर पलायन होता था वो गांव में ही अब लोग काम करने लगे। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको उन्नत किस्म की फसलें, बीज मिले, जिसके कारण जहाँ सब्जी भाजी कुछ नहीं होती थी, जहाँ सरसों की फसल नहीं होती थी, केवल गेहूं चावल होता था, वहाँ आज सारी फसलें किसान पैदा करते हैं। और धीरे धीरे काम 19 गांव में हुआ। आज पूरे मझगांव क्षेत्र में जल प्रबंधन का काम सरकार के माध्यम से और अन्य एनजीओ के माध्यम से संपन्न हुआ है और उसका परिणाम दिखता है। धन्यवाद। जय हिंद। जो भैया कहा था कि हम लोग ने टोटल ऑफ 12,500 अप्रोक्सीमेटली हेक्टेयर्स कवर किया था 17 मिनी वाटरशेड एरियाज में। एंड यूज ऑफ वाटर का, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर का पूरा क्षेत्र में बदलाव हो गया है ना। ओके अमिताभ। तो अब नेक्स्ट स्पीकर अपने रहेंगे हेमराज द्विवेदी जी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और बायो प्लेट मेकिंग। जी भैया, सभी को मेरे प्रणाम। सभी को मेरे प्रणाम भैया। भैया जो हमारा क्षेत्र है वन आधारित क्षेत्र है और यहाँ पे जो जनसंख्या, जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, आदिवासी भाई बहन, उनके आय का मुख्य स्रोत अगर देखें तो लघु वनोपज ही है। तो निसंदेह जैसे आंवला है, हर्रा है, बहेड़ा है, पलास है, तेंदुपत्ता है, तो इनको तोड़ने की प्रक्रिया से लेकर के कैसे हम उसका कलेक्शन करें, कैसे उनका प्रसंस्करण करें और प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद ही उसको बाजार पर बेचे जिससे उनका अत्यधिक मूल्य मिले, इसके लिए कैसे हमें आंवले की तुड़ाई करना है, कैसे हमें महुए की तुड़ाई करना है। तो जनरली आप देखेंगे कि जैसे जंगल में महुआ छोटे आकार में आता है तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में शुरुआती दौर पे ही लोगों के द्वारा उसको तोड़ लिया जाता था। तो अनमेच्योर जब आंवला टूटता था तो उसके द्वारा जो अमलेठी तैयार की जाती थी तो निसंदेह उसकी जो गुणवत्ता होती थी वो अच्छी नहीं होती थी। उनको फिर यह बताया गया कि आपको इसको कब तोड़ना है। तो वैसे भी हमारी हिंदू सभ्यता में देखें तो इच्छा नवमी के बाद ही हम आंवले के फल का सेवन करते हैं। तब तक में आंवला पूर्णतया तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और जब उसको तुड़ाई करते हैं तो नीचे एक ग्रीन नेट लगाते हैं हम लोग और उसके माध्यम से एक
बांस की लकड़ी लेते हैं और उसके ऊपर एक गद्दे नुमा की संरचना बनाते हैं और आसानी से 4 महिलाएं नीचे नेट को पकड़ करके खड़ी होती है और ये सारा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें जो आंवला होता है उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगता है, जिससे उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है और उसमें जो अमलेठी बनाने का कार्य है आसानी से करके जिस अमलेठी का बाजार में मूल्य 50 से 60 रुपए मिलता है, तो जब हम इसको एक प्रॉपर वे पे करते हैं तो इसका 150 से 200 रुपए प्रति केजी के आधार पर जाता है। तो इससे गांव के स्तर पे जागरूकता के आधार पर उनको कृषि विज्ञान केंद्र और दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से महिलाओं को और आदिवासी भाई बहनों को ये बताया जाता है किस तरीके से कलेक्शन करना है। ऐसे ही महुआ का जो फूड ग्रेड है, जो खाने के योग्य, जैसे हम लोग लाटा बनाने का काम करते हैं, महुआ लड्डू बनाने का कार्य करते हैं, तो इसको जो हम खाने में उपयोग में लाने वाले हैं उसको ग्रीन नेट के माध्यम से उसका कलेक्शन करते हैं जिससे धूल और मिट्टी ना जाए और उसके बाद ही हम उसको यूज में लाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो आजकल मंदिरों में चाहे भंडारे हों या हमारे शादी ब्याह के कार्यक्रम है या अन्य कार्य हों, उनमें थर्माकोल और प्लास्टिक ने दोनों और पत्तल का स्थान बना लिया है मैक्सिमम। उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा ही एक डिजाइन की गई है दोनों पत्तल मशीन। उसको लघु वनोपज मूल्यवर्धन एवं उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र में हम लोगों ने इसको लगाया है। गांव की महिलाओं के द्वारा पलाश के पत्तों का कलेक्शन करवाते हैं और उस कलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे दोना और पत्तल बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारा चित्रकूट क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर भंडारे आदि होते रहते हैं, इसमें हमें मार्केट भी अच्छी मिल रही हो और इसमें गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कैसे हम युवा व्यक्तियों को कैसे रोजगार गांव में ही उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी आय का सृजन कर सकते हैं, जिसमें जो पलायन होता है, जो लोग बाहर जाकर के नौकरियां करते हैं, तो हमारे लोकल फॉर वोकल की जो परिकल्पना है माननीय मोदी जी की, और उस परिकल्पना को साकार और नाना जी की जो परिकल्पना थी कि हमारा गांव कैसे स्वावलंबी बने, इस दृष्टि से लघु वनोपज पर आधारित हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद युवराज जी, धन्यवाद। तो ये एक जो उदाहरण इस बात का था कि किस तरह से हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से उत्पादन अगर करते हैं, तो जैसे इसमें भी कहा गया कि अगर सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए आवश्यक है कि हम स्थानीय स्तर पर ही काम करें, तो इनका एक बढ़िया उदाहरण इन्होंने रखा हिमराज जी ने। अब डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ Also, Amitabh, replacement of plastic. जी। It's biodisposable, so it's a replacement of plastic. That is the main issue with it. जी। बायोगैस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सारे विषय में सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए। तो बायोगैस प्लांट, अपने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है, पशु प्रधान है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। सरकार की ओर से भी इस पर बहुत बड़ा जोर है। तो इस बायोगैस प्लांट के विषय में डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी। सभी को प्रणाम। आज तो पूरे विश्व में प्रदूषण की समस्या के कारण से परेशानी हो रही है, लेकिन नाना जी तो दूरदृष्टा थे। उन्होंने आज से लगभग 35 वर्ष पहले ही इस पर विचार करना और काम करना प्रारंभ कर दिया था कि प्लांटेशन अधिक से अधिक हो, पौधों की कटाई कम से कम हो और जो बायो वेस्ट है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट्स का हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। उस दृष्टि से काम प्रारंभ किया था और आज चित्रकूट के आसपास के गाँव में सरकार के सब्सिडी के माध्यम से बहुत से प्लांट्स लगे, लेकिन कहीं सफल हुए कहीं असफल हुए। लेकिन कृषि दीनदयाल शोध संस्थान का जो अपना आरुग्धाम परिसर है, 21 वर्ष पहले 2 प्लांट्स लगे थे। वो मॉडल था फ्लोटिंग ड्रम वाला, KVIC वाला, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं, 21 वर्ष से आज तक 1 रुपये उनमें कोई भी किसी भी तरह का खर्च नहीं हुआ है। एक तरफ से 1:1 के रेशियो में पानी और गोबर को स्लरी बना के हम लोग डालते हैं और वो दूसरी साइड में खाद बनकर निकलती है और गैस अलग से एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो गैस बनने का कारण होता है मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग उसको बायोगैस में प्लांट्स में यूज नहीं करते तो गोबर और जो बायो वेस्ट है वो सड़ता, तो उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है, प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनती है। तो इसी के साथ साथ दूसरी और समस्या होती है कि हमारी बहनें जो घर में खाना बनाती हैं वो पेड़ काट के लकड़ी का उपयोग करके
आंखें खराब करके रोटी बनाती, खाना बनाती। तो इस बायोगैस के प्लांट्स के कारण से एक तरफ खाद बन रहा है, 21 दिन में खाद बन के तैयार हो जाता है, जो कोई दूसरी टेक्निक नहीं है बायोगैस प्लांट के अलावा, कोई इतना जल्दी खाद बना दे। और इतनी सस्ती बायोगैस का कोई खर्चा ही नहीं, 100% सस्टेनेबिलिटी वाला विषय। ये प्रयोग हम लोग पिछले 21 वर्ष से अपने कैंपस पे कर रहे हैं और सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए हम लोग किसानों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको एक टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं कि अगर कहीं किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके अच्छे परिणाम हमको गाँव में देखने को मिल रहे हैं। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि जो पौधे हैं उनकी कटाई कम हो। पूज्य बाप जी ने भी आज कहा, अपने जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। अमिताभ, आप? हाँ, या अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी। अब रूरल जो हेल्थ का अपना काम है, तो उसके विषय में अपने श्री राजेंद्र पटेल जी लंबे समय से अपने यहाँ कार्यरत है और एक ग्रामीण स्वास्थ्य की जो परिकल्पना है नाना जी के मन में थी, उसको साकार किया गया है धरातल पे, तो उसके विषय में बताएंगे। सभी को प्रणाम। दादी माँ के बटुए के माध्यम से गांव में स्थानीय जड़ी बूटियों के गुण, धर्म, मात्रा, प्रयोग की जानकारी दे करके लोगों का समय, पैसे और स्वास्थ्य में अच्छा लाभ दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर में दूब है। अब दूब की जानकारी दे दी गई कि दूब अगर शरीर के किसी अंग से खून बह रहा है तो खून को तुरंत रोकती है। दूब की जानकारी देने से बहुत लोगों को लाभ हुआ। कुपोषण में भी दूब काम करती है, खून और पानी की कमी पूरा करती है, और गर्मी की बीमारियों में भी फायदा करती है। जैसे किसी का पित्त बढ़ गया, पेशाब में जलन है, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक गांव में ही उपलब्ध होने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी देके साथ में अपना दादी माँ का बटुआ के माध्यम से हम अच्छा काम किया और कर रहे हैं, और इसी में जो है सबका हित है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो हम लोग एक दादी का माँ का बटुआ बनाते हैं जिसमें there's 34 herbs that can treat minor disease, and out of that 34 herbs that are in Dadi Ma Ka Batwa, 25 of them are locally available, so they can be replenished from the fields around the fields in the forest around the village. So we have made a formulation where it can be replicated depending on the area they are in. They can use different herbs to replace the ones that are locally available there from the ones that are locally available here. So we have one last intervention and then we'll carry on with our next speaker. So last intervention is on nutritional kitchen garden and plantation of Panchvati. श्रीमती ममता त्रिपाठी अपनी होम साइंटिस्ट हैं, गनीवा जो अपना केवी के है वहाँ पर, और महाराष्ट्र में भी बीड में उन्होंने काम किया है, बहुत अनुभवी हैं। ममता जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना विषय रखें। सभी को नमस्कार। सुनाई दे रहा भैया? हाँ, सुना दे रहा। बताइए। नाना जी हमेशा कहा करते थे कि ग्रामीण जो भाई बहन हैं, किसान हैं, उन्हें कोई बात, अपनी बात मनवाने के लिए आप उन्हें अध्यात्म से जोड़ें, धर्म से जोड़ें। उसी हेतु से जो पंचवटी की बात होती है, जब गांव में हम लोग पंचवटी बनाने की, हमारे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, समाज शिल्पी हैं, वो सभी लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं तो उनके पंचवटी की स्थापना करनी है, ऐसी बात करने के लिए उन्हें धर्म से जोड़ने की जब बात बताते हैं कि आप पांच आप पौधे लगाएंगे जिसमें आम, आंवला, बेल, अशोक और पीपल लगाना है, जो से धर्म से जोड़ करके जब बताया जाता है कि आम के सभी जो लकड़ियां हैं जो उसके हवन में काम आता है, आम के जो फल होते हैं वो बलवर्धक होता है,
उसके कच्चे आम का पन्ना जो है वो औषधि के रूप में काम आता है। आंवले में विटामिन सी बहुत होता है, उसका आप उपयोग करें। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया अक्षय नवमी के समय उसका पूजा की जाती है। ऐसे ही बेल का सावन के महीने में बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है, उसकी भी लकड़ियां हम पूजा में लगाते हैं। उसका बेल का जो फल है वो बलवर्धक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में उसका उपयोग होता है। अशोक का पेड़ जो हम लगाते हैं, पीपल जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसी 5 पौधों को पंचवटी के रूप में 59 स्वावलंबन केंद्रों में आज ये रोपित किया गया है और सभी स्वावलंबन केंद्रों में पंचवटी है। जो नाना जी की बहुत बड़ी सोच थी कि अगर हर गांव में ये पंचवटी होगी तो जो वातावरण को शुद्ध करना है और औषधि वो सभी चीजें, जो पोषण वाटिका की जो बात हो रही है वो पहले गांव में जाने के बाद गांव में जो पूरा गलियों में पानी पूरा किचन का आ जाता था, पूरे रसोई का पानी आता था, अपने जो वेस्टेज पानी होता था वो पूरा गांव में फैला रहता था। और जो हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से, सभी के माध्यम से, जब जो आरोग्य दूत हैं उनके माध्यम से जब हम लोगों ने ये बैठक की और सभी, जो नाना जी का कहना था कि हर घर में जब सब्जियां होगी, हर घर में सब्जी होगी तो किसी की सब्जी चुराएगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और अगर लौकी पड़ोसी के यहाँ लगी है तो वो कभी लेगा नहीं, क्योंकि हर घर में हमारे परिवार में सब्जी का उत्पादन होना चाहिए और सब्जी का उत्पादन हो तो वो अपनी थाली में उसका उपयोग करे, अपने आहार में उसका उपयोग करे। और आज ये परिस्थिति है कि हर घर में आप किसी भी घर में जाएंगे, किसी भी परिवार में जाएंगे तो इन स्वावलंबन केंद्रों में सभी के घरों में लौकी है, तरोई है, नेनुआ, पालक, गाजर, सभी प्रकार की सब्जियां मिलेंगी। अभी रबी के सीजन में भी आपको सभी प्रकार की सब्जियां मिलेंगी और सब्जियां नहीं मिलेगी बल्कि उनके पास अगर आप भोजन के लिए जाएंगे तो जो उनकी थाली होगी उसमें भी उनको पूरी आपको हरी साग सब्जियां पूरी मिलेंगी, जिससे उनके ममता जी विषय की हमारी थोड़ी समय की थोड़ी सीमा है, आपने अपना विषय रख दिया और निश्चित रूप से जो अपना ये प्रयोग है न्यूट्रिशन किचन गार्डन का, तो बसंत भैया इसके विषय में थोड़ा सा रखेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्पीकर की ओर। This is one of the best examples you can find of sustainable production, sustainable consumption. Each family produces what they need and each family consumes what they need. Most of our interventions that we have showcased here, including the 1.5 acre model, where the only item for the kitchen table that needs to be bought is salt. Everything is produced within the 1.5 acre farm, to minor forest produce value addition, to the 1.5 to the kitchen garden and the Panchvati and the Dadi Ma Ka Batwa are examples of both sustainable production and sustainable consumption. That we've in a very short time we've tried to showcase with just a few examples what we try and do on the ground in Chitrakoot. Now we'll move on to the next speaker. I'll hand this over to Amitabh to take that forward. Our next speaker, he's practicing all these things. Matlab, since the last 22 years, he's practicing all these things in Nagpur. Let me introduce him. Dr. Kishore Malik. He's a PhD in environment science, specialization in watershed, wastewater treatment from National Environment Engineering Research Institute, Nagpur. And he's among his other duties as director of SMS Envocare Limited. He's chairman CII Vidarbha Zone, member EAC committee appointed by Ministry of Forest and Environment, Government of India. He's member of River Rejuvenation Committee appointed by Government of Maharashtra and member National Committee on Environment of CII. जैसा मैंने बताया 22 साल का उनका अनुभव है. He will speak on liquid waste management, waste to wealth in Nagpur story. Hello. Ji. Am I audible? जी, you are audible. सभी को नमस्कार. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गांव से जुड़ के गांव की बातें समझने के लिए, गांव के मॉडल समझने के लिए. इससे अपॉर्चुनिटी हमारे कॉर्पोरेट कैरियर में बहुत कम आती है. एंड आई एम थैंकफुल टू वसंत पंडित जी
convener World SDG Forum, and other dignitaries present in the discussion. काफी अच्छा सा अनुभव हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंस मॉडल एट द विलेज लेवल फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द कंजम्पशन, फॉर द ट्रीटमेंट. इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं. इन मॉडल्स का प्रचार होना बहुत जरूरी है. मैं अपनी बात रखूंगा ऑन दी सीवेज ट्रीटमेंट, जो हमने नागपुर में एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया है और वहां से उस इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड दे आर उस मॉडल को और शहरों में भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी on this 6th webinar series on sustainable consumption, sustainable production, organized by World SDG Forum, operated from चित्रकूट. बड़ी पवित्र भूमि है, उसको नमन करता हूं और मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं. आगे नेक्स्ट प्लीज सर. ये एक हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो है जिसमें हम काम करते हैं. हम रोड्स में काम करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, माइनिंग, टोल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल, रियल एस्टेट, टैक्सीज हैं, मॉल है, हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर. और एक काम का एरिया है हमारा एनवायरनमेंट. सो नेक्स्ट लेकिन सर. एनवायरनमेंट में के सेक्टर में हम लोगों ने 2003 से काम चालू किया एंड उसमें हम सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं. जो भी आज की समस्याएं हैं उनको हमने तभी से अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करने के अलग अलग मॉडल बनाए हैं. और जैसे मैं चालू करूँ, एक BMW लिखा है. BMW कार नहीं है, ये बायोमेडिकल वेस्ट है. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हमारी 7 सिटीज में सर्विसेज हैं. हम सभी जगह से बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा इकट्ठा करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिसाइकल करते हैं और उसको साइंटिफिक डिस्पोज करते हैं. तो ये इसमें बड़ी सिटीज में आती है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, नासिक, औरंगाबाद, और ऐसे एक हमारा प्लांट अफ्रीका में भी. वैसे हमारे हजार्डस वेस्ट के प्लांट्स हैं, तो 90% ऑफ महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज का हजार्डस वेस्ट जो जनरेट होता है हम लोग कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट ट्रीट करके डिस्पोज करते हैं. जैसे बायो माइनिंग, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. हम लोग ऑलमोस्ट 1000 के आसपास की टीम है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर, बड़ी बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सभी की टीम के साथ अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारा वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस है. 2006 में हमने CETP बूटी बोरी करके एक इंडस्ट्रियल एरिया नागपुर के पास, वहाँ पे इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो पहले पास की नदी में डिस्पोज होता था, ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट. तो अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसको बोलते कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. ये कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में सारी इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर को पाइप से नेटवर्क करके इकट्ठा किया और वहाँ पे प्लांट डेवलप करने के बाद इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 लेवल का ट्रीटमेंट करके इस वाटर का यूज हम करते हैं. 25 हेक्टेयर एरिया में यूकेलिप्टस की प्लांटेशन है. जो यूकेलिप्टस की प्लांटेशन में ट्रीटेड वाटर यूज होता है. अभी रिवर में नहीं जाता है, वहाँ के एक वेणा रिवर है, पहले वेणा रिवर में जाता था. नाउ इट इज ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड और प्लांटेशन को ग्रो करते हैं और प्लांटेशन वो फिर यूके विक्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज यूकेलिप्टस के प्लांट्स को हार्वेस्ट कर करके यूज करती है. तो एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से पोल्यूशन होने के बजाय उसको प्रॉपर ट्रीट करके प्लांटेशन डेवलप करके उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं एंड वी कैन सेव द पोल्यूशन. उसी मॉडल पे हमारा औरंगाबाद में एक वाड़ूज इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 10 मिलियन लीटर पर डे का एक प्लांट है जो 2010 से चल रहा है. एक हमने कागल इंडस्ट्रियल एरिया जो कोल्हापुर के पास है और 2011 में एक प्लांट बनाया. भांडेवाड़ी के STP पे मैं बात करूंगा जो हमने 2015 से ऑपरेट चालू किया है. CTP एक अमरावती इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ब्लैक वाटर को वेस्ट वाटर में कन्वर्ट करके वापस हम इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं. 100% रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट है वो. गुजरात में हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमने ONGC के लिए क्रिएट किया. ONGC के वेस्ट वाटर को 65 किलोमीटर के नेटवर्क से कलेक्ट करके ट्रीट करके वापस उसकी रिसाइकलिंग के लिए देते हैं. रायपुर में रिसेंटली हमने अभी 200 mld पानी के रिसाइकलिंग प्लांट बनाए हैं. सो खारून रिवर में जो पोल्यूशन होता था रायपुर सिटी से, उसको पूरा स्टॉप करके नाउ ट्रीटमेंट प्लांट आर ऑपरेशनल. और गुरुग्राम में हमारा 100 mld के प्रोजेक्ट पे अभी काम चालू होना बाकी है.
नेक्स्ट प्लीज। तो ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें SBR एक प्रीडोमिनेंट टेक्नोलॉजी है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक टेक्नोलॉजी है। ये सारी टेक्नोलॉजीज बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें माइक्रोब ही मेजर रोल प्ले करते हैं। माइक्रोब्स को सर्वाइवल के लिए हमको उन्हें ऑक्सीजन देना होता है। ऑक्सीजन हम ब्लोअर्स के थ्रू देते हैं। वो ब्लोअर की कॉस्टिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट होके एयर टू ऑक्सीजन ट्रांसफर देन बायोलॉजी माइक्रोबियल एक्टिविटी से ट्रीटमेंट होता है। इस एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं अलग अलग बड़े प्लांट के लिए। SBR और ASP MBBR करके एक टेक्नोलॉजी है। ये तीनों प्रीडोमिनेंट टेक्नोलॉजी है। मीडियम साइज के प्लांट है जहाँ पे 20 mld नीचे है, उसमें भी ASP MBBR SBR एक MBBR करके टेक्नोलॉजी वो काफी प्रीडोमिनेंटली यूज होती है जो छोटे लेवल पे करना हो। अगर हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, इस टाइप की जगह करना जहाँ MBBR टेक्नोलॉजी इज मोर इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली वायबल। जैसे कुछ रूट जोन टेक्नोलॉजी, फायर टेक्नोलॉजी, ये सब नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये नागपुर सिटी मॉडल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो नागपुर, नेक्स्ट प्लीज। नागपुर में ऑलमोस्ट 500 mld पानी का कंजम्पशन होता है रोज, 500 मिलियन लीटर डे, जिसमें एक 100 mld का प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। बाद में हमने ये 130 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और उसके बाद 200 mld का और बना। ऐसा करके अभी ऑलमोस्ट 430 mld सीवेज ट्रीट होता है। ये वन ऑफ द प्लांट है 130 mld सीवेज रिसाइकलिंग प्लांट। ये इंडिया का पहला प्लांट था जहाँ पे सीवेज को रिसाइकल करने की परिकल्पना की, और उसमें गडकरी जी का काफी बड़ा विजन था कि नागपुर सिटी को पोल्यूशन से मुक्त करना है और सीवेज का ऐसा यूटिलाइजेशन करो कि फाइनेंशियल बर्डन कॉर्पोरेशन पर ना आए। अभी तक जितने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हुए उसमें हम फाइनेंशियल वायबिलिटी के कारण उसके इम्प्लीमेंटेशन को उतना पुश नहीं कर पाए, बिकॉज कॉर्पोरेशन वैसे ही फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर होता नहीं, फाइनेंशियल चैलेंजेस के कारण वो इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती है। तो हमने ये मॉडल तैयार किया है, इसमें 2 यूनिकनेस है, वन इज टेक्निकल यूनिकनेस, रिसाइकलिंग है, और फाइनेंशियल यूनिकनेस भी है। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ये सीवेज तो जो हम 130 mld लेते हैं उसके इनलेट के पैरामीटर हैं किस टाइप का आता है। इसमें मेनली BOD और सस्पेंडेड सॉलिड्स और टोटल नाइट्रोजन, ये 3 पैरामीटर को लेके सीवेज ट्रीटमेंट की डिजाइनिंग होती है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर यहाँ पे हमने एक फॉस्फोरस करके एक पैरामीटर है उसको भी कंसिडर किया, जो 8 फॉस्फोरस आता है उसको 0.5 ppm पे रिड्यूस किया, क्योंकि फॉस्फोरस के कारण स्केलिंग के इश्यूज होते हैं। अगर हम सीवेज को रिसाइकल करेंगे तो फॉस्फोरस रिडक्शन इज मस्ट, अदरवाइज वो स्केलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 250 BOD, जबकि नॉर्म्स कंट्री में 20 BOD की थी आउटलेट की, हमने 5 BOD पे डिजाइन किया। सस्पेंडेड सॉलिड्स हमने लेस देन 5 BOD पे डिजाइन किया। टर्बिडिटी हमारी पानी में लेस देन 2 होती है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से प्लांट डिजाइन करके ऑपरेशन चालू। नेक्स्ट प्लीज। ये पूरी प्रोसेस है, इसमें पंप के थ्रू पानी आता है इनलेट चेम्बर में, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेसेस को सेग्रीगेट करते हैं स्क्रीन के थ्रू। स्क्रीन के बाद ग्रीट रिमूवल सिस्टम है, ये सिविल स्ट्रक्चर है, इसमें इनर्ट्स बिकॉज ऑफ हेवी वेट दे सेटल डाउन। उसके बाद प्राइमरी क्लेरिफायर्स होते हैं, प्राइमरी क्लेरिफायर में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम सेटल डाउन करते हैं। फिर SBR टेक्नोलॉजी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें एयर प्रोवाइड करने का सिस्टम होता है, इसको हम एरिएशन सिस्टम बोलते हैं। और एरिएशन के साथ साथ उसमें माइक्रोब्स को डेवलप करते हैं, इसे नेचुरल डेवलप्ड माइक्रोब जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं एंड दे मेक इट क्लीन। इसमें SBR टेक्नोलॉजी में आप एक ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ग्रीन स्ट्रक्चर इज ए डिकेंटर जो सरफेस से वाटर को पिक कर लेते हैं, जो ट्रीटेड वाटर रहता है। पहले इसमें 2 घंटे के लिए पानी फील होता है, 1 घंटे के लिए एयर चलती है, उसके बाद 1 घंटा सेटलिंग अलाउ करते हैं। सेटलिंग के बाद जितने सेटलेबल्स हैं वो पूरा सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद ऊपर से डिकेंट करके साफ पानी को डिकेंट करके आगे ले जाते हैं। आगे हमारे क्लोरीन कॉन्टेक्ट टैंक है, जहाँ पे वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग ए गैस, क्लोरीन गैस। उसके बाद वो जाता है ड्यूअल मीडिया फिल्टर, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। ड्यूअल मीडिया फिल्टर में एंथ्रासाइट एंड सैंड का बेड बना हुआ है,
फाइनल ट्रीटेड वाटर वो एक टैंक में इकट्ठा होता है और वहां से 18 किलोमीटर की पाइपलाइन से ये कोराडी थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई करते हैं। तो कोराडी थर्मल पावर प्लांट जो, नेक्स्ट प्लीज, कोराडी थर्मल पावर प्लांट जो पहले सरफेस वाटर यूज करता था थर्मल पावर बनाने के लिए, अब वो ट्रीटेड सीवेज पे चलता है और 10 लाख लोग जितना पानी, ऑलमोस्ट 1,30,000 मीटर क्यूब पानी एवरी डे सेव होता है नागपुर सिटी में फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और इसमें अगर एवरेज कैरेक्टरिस्टिक ये इस टाइप के अभी पानी जो आता है 120 बीओडी, 220 सीओडी, टीएसएस 200, एंड देन हम ट्रीट करके उसको 3.6, 8.3 इस टाइप का क्वालिटी का पानी अवेलेबल कराते हैं, जो कि बियॉन्ड नॉर्म्स है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स बीओडी के लिए 10 है, टीएसएस की 10 है, फास्फोरस 2 है, नाइट्रोजन 10 है, बट हम लोग उसको बेटर ट्रीट करते हैं बियॉन्ड नॉर्म्स, बिकॉज उसको रिसाइकलिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता था कि बहुत कॉस्टली सिस्टम नहीं है। अगर प्रॉपरली डिजाइन करके ऑपरेट करें तो इसमें मेन जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा बाकी तो 1000 लीटर पानी को ट्रीट करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 पैसा है, जिसमें मैन पावर, केमिकल, मेंटेनेंस सब आ जाता है। सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 3-3.5 रुपए आती है। तो आगे नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं कि इसमें 130 mld फ्रेश वाटर हम लोग ट्रीट करके 10 लाख लोगों को फ्रेश वाटर अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट है कि इसमें वाटर सिक्योरिटी इनहेंस हो गई फॉर थर्मल पावर प्लांट ऑल्सो। पहले ऐसा होता था कि जब भी वाटर की स्कैर्सिटी होती थी तो सबसे पहले वाटर कट ऑफ थर्मल पावर प्लांट को होता था और पावर प्रोडक्शन को परेशानी होती थी। आज पावर प्लांट इज सिक्योर्ड एंड सेफ कि उसको 130 mld ट्रीटेड सीवेज तो मिलने ही वाला है, क्योंकि ट्रीटेड सीवेज और किसी को नहीं चाहिए। जहाँ ड्रॉट की कंडीशन आती है सबसे पहले कट ऑफ इंडस्ट्रीज को होता है, क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कराना है। वो उनको एक सिक्योरिटी हो गई, वाटर रेजिलियंस सिस्टम हो गया। और सबसे बड़ा फायदा इसको इन्वायरमेंटली ये हुआ कि इट इज नॉट अलाउिंग पोल्यूटेंट्स टू गो इनटू वाटर बॉडीज। अदरवाइज ये सीवेज हमारा नाग नदी से होके पीली नदी, फिर उसके बाद वो घोसीकोट डैम में मिलता था जो हमारा वाटर सोर्स है। तो दिस सीवेज इज नॉट गोइंग टू द वाटर सोर्स नाउ। इकोलॉजी ऑफ द होल वाटर बॉडी इंप्रूव हो रही है। रेजिलिएंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ वाटर फॉर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पहले 40 किलोमीटर दूर से पंप करके पानी लाता था, अभी वही पानी हमको 18 किलोमीटर की पंपिंग में मिल जा रहा है। एंड द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट बेनिफिशियल टू थर्मल पावर प्लांट इंस्टेड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये कि सीवेज के जो ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल्स में वो सिटी काउंसिल्स की है। सिटी कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत इनका काम है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और सीवेज को ट्रीट करे और उसके लिए खर्चा भी करे। पर इस मॉडल में ऐसा तैयार हुआ कि पानी ट्रीट होके थर्मल पावर प्लांट को मिल रहा है, थर्मल पावर प्लांट को भी फाइनेंशियल बेनिफिट है, वो उससे जो सेविंग आती है हम अपना खर्चा निकालते हैं और हम हर साल कम से कम 15 करोड़ रुपया सिटी कॉर्पोरेशन को देते हैं एज ए रेवेन्यू। तो जो सिटी कॉर्पोरेशन ने एक्सपेंस करना चाहिए थे फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, उनके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स हो गया एज अ सस्टेनेबल मॉडल। एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, वाटर रेजिलियंस हो गया, फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, सो ऑल विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इस तरीके से ये मॉडल डेवलप हुआ नागपुर में एंड इट इज रेप्लिकेटेड नाउ। मैं एक चिंता का विषय भी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल डेवलप हुए और हमने जितने रेगुलेशंस लेके आए कंट्री में, जितने टेंडर्स हो रहे हैं, उसमें एक कंसर्न मैंने आइडेंटिफाई किया है कि अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट 72,000 mld सीवेज जनरेट होता है। आज उसको ट्रीट करने के जितने प्लांट है अक्रॉस इंडिया वो ऑलमोस्ट 1093 प्लांट ही है जो ऑपरेशनल है। वैसे टोटल 1469 प्लांट्स हैं, बट उसमें 274 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 102 नॉन ऑपरेशनल है, 1093 ऑपरेशनल है। अब ये नो डाउट लास्ट 7-10 सालों में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये प्लांट ऑलमोस्ट डबल जैसे हो गए हैं,
बट स्पीड फिर भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अभी 43% तक ही पहुंचे सीवेज को ट्रीट करने में और सीवेज का यूज करने में। नेक्स्ट प्लीज। तो सीवेज को ट्रीट करने में तो 43% चले गए, बट अगर रीयूज की बात करें, जो मॉडल डेवलप हुआ है इकोनॉमिकल वायबल मॉडल है, उसका फिर भी परसेंटेज हर स्टेट वाइज देखेंगे तो हाईएस्ट 12% तक है दिल्ली में, वो भी वहां पे इरिगेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये रिसाइकलिंग सिस्टम्स को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे। यस, आई एम डन। लास्ट वन स्लाइड। यस प्लीज गो अहेड। तो ये टेंडर के स्टेट्स हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी कोशिशें हो रही है, एवरी ईयर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते, पर अवार्ड उनका काफी कम होता है। कि अब हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड कितने, 518 में से 52 अवार्ड हुए। सो इन प्रोसेसेस पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर तरीके से काम होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मेरे वे फॉरवर्ड है कि एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम्स डेवलप हो फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, सो दैट कॉस्ट और रिडक्शन हो जाए। कोई पॉलिसी ऐसी हो टेंडर डिजाइन अवार्ड की कि जो फास्ट टू फास्ट ट्रैक में हो, तो हम 43 से 100% तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर बल्क कस्टमर्स के लिए इंप्रूव होना चाहिए। रेलवे या थर्मल पावर प्लांट इनको इंकरेज करना चाहिए कि ये रीयूज वाटर यूज करें, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम अचीव कर पाए। फ्रेश वाटर हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, पेशेंस हियरिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम ready to discuss. आपकी आवाज नहीं आ रही सर अमिताभ जी। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और मैं कह रहा था कि नागपुर एक बड़ी प्रयोगशाला है ऐसे कामों की। जी और सर। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए इस तरह के प्रयोग, आप जैसे प्रयोग हैं, निश्चित रूप से देश भर में रेप्लिकेट होने ही चाहिए। बिकॉज environmentally these are not only sustainable practices but that they can help to protect natural resources also. अब आज बड़े डिस्टिंग्विश्ड लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई कुछ क्वेश्चन आंसर हो इसके विषय में किशोर जी से पूछने के लिए, तो मैं आमंत्रित करता हूं आप लोगों में से जो भी चाहे अपना हाथ रेस करें। सूरज जी, सूरज। Actually, you know, sustainable production और sustainable consumption, okay, जो एक धुरी है मेरे ख्याल से सतत विकास ध्येय की, उसमें एक और जुड़ाव हमें देखना है, वो है नीति, खास करके प्रोक्योरमेंट की नीति और सस्टेनेबल वेंडर की जो ब्रांडिंग होती है उसको देकर के यदि कुछ काम किया जा पाए। ये Mr. Tejinder Sandhu has, I think, a presentation based on what are the opportunities and entry points from SDG action plans. I think Tejinder has got some stuff on it based on the work that was done in 2 Indian states. So maybe we can look to Tejinder's presentation, okay, as and when his turn comes. Certainly we will listen to him. डॉक्टर सतीश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? म्यूट। You're muted. जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल में भी आप लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन हॉस्पिटल में लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल की भी एक बड़ी समस्या है। तो उसका क्या आंकलन हुआ या उस विषय में, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम किया है, सब डिवीजन में काम किया है, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और अभी भी हमारी टियर 2 सिटीज हैं, टियर 3 सिटीज में तो ड्रेनेज सिस्टम, अभी सीवर सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी समस्या वो भी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बाकी तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन थी और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपकी जो कंसर्न है बिल्कुल सही है। मेडिकल वेस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है। और किशोर जी, बायोमेडिकल सर, जो लिक्विड वेस्ट का सब्जेक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दे ब्रॉट न्यू रूल्स कि जो भी 100 बेड या 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं वो अपना खुद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, वो अपना खुद का इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, एंड दे हैव टू ट्रीट द लिक्विड वेस्ट ऑन देयर ओन। जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करके
उस वाटर को सीवरेज नेटवर्क में डालने के लिए परमिशन दी हुई है। तो अभी तो लिक्विड वेस्ट के लिए भी ऑन साइट ट्रीटमेंट की प्रोविजन की है, क्योंकि इसको सेंट्रलाइज सिस्टम में ले जाने के लिए काफी बड़े नेटवर्क लगेगा और क्वांटिटी इतनी कम है कि अगर बाय टैंकर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी 10 टाइम्स देन द ट्रीटमेंट कॉस्ट। इसलिए ऑन साइट ट्रीटमेंट ही उसमें प्रोविजंस की है। और अक्रॉस द नेशन लिक्विड वेस्ट के लेके अक्रॉस द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने काफी कंट्रीज की विजिट की है सिस्टम को समझने के लिए, और ये देखा है कि ऑन साइट लिक्विड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड ट्रांसपोर्टेड ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड, क्योंकि सॉलिड वेस्ट को ऑन साइट ट्रीट करने में इंसिनरेशन के अलग कंसर्न्स आ जाते हैं। सो इसलिए सेंट्रलाइज फैसिलिटी जो कि इकोनॉमिकली वायबल होती है, वहां पे टेक्निकल स्टाफ को रख पाते हैं, दे कैन परफॉर्म ड्यूटीज प्रॉपरली। इसलिए अक्रॉस द कंट्री हमारे यहाँ 225 फैसिलिटीज है इंडिया में जो बायोमेडिकल वेस्ट को पूरे देश में ट्रीट कर रही है प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। धन्यवाद। थैंक यू। आप समय आज इस बार पता ही नहीं चल रहा है इस वाली वेबिनार में कितनी तेजी से निकल रहा है। अगले स्पीकर तेजिंदर सिंह संधू जी हैं। पूरे शुरू से ही इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों के साथ रहे हैं। तेजिंदर संधू हैज ओवर 4 decades of varied multi-country, multi-sector experience, spanning the social development sector in 6 South We have lost you, Amitabh. Hello. Ji. So, this is a minor glitch of the technology. कुछ प्रॉब्लम है इसका। तो तेजिंदर संधू जी will speak on ensuring sustainable consumption and production, insights from action plans. आप मेरा प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं? It's quiet. It's on. Can I start? Yes. Yes, sir. Okay. Thank you. Good evening. मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, पर मैं प्रयास करूंगा यथासंभव कि मैं जहां तक चल सकूं हिंदी में चलूंगा, फिर कहीं कहीं आपको इंग्लिश के साथ भी मेरे को समझना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य ये है कि हम टिकाऊ उपयोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित कैसे करने हैं और क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं। काफी तो उस बात की व्याख्या हो गई। मुख्य रूप से अगर हम ये देखें कि वो आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई है पिछले 100, 150, 200 साल में, बहुत प्रगति हुई है, लेकिन जो पर्यावरण में गिरावट हुई है उससे जो हमें खतरा पैदा हो रहा है वो शायद कहीं और ज्यादा है। और जिस पेस पे या जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो हमें खतरे में डाल रही है, और हमारा भविष्य और हमारा जो विकास और अस्तित्व है उसके लिए आवश्यक है कि अब हम इस पैटर्न को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो 2 राज्यों में भारत में इस पर चर्चा हुई है और प्लान बने हैं, उनमें से मैं कुछ दृष्टांत आपको देने का प्रयास करूंगा। ये स्लाइड Tell me when to forward the slide. Yeah, Please let sure. me know to the next. Okay, going forward I will do that. ये जो 5 P's हैं, ये yeah, remain here for a bit.
सभी एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एसडीजी 12 या सतत विकास लक्ष्य 12 जो है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसका केंद्र बिंदु है। अब चाहे हम गरीबी उन्मूलन ले लें, ऊर्जा विकास ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की बात कर लें, असमानता को समाप्त करने की बात करें, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण, समुद्र की सफाई, भूमि उपयोग और साधनों के लिए भागीदारी या पार्टनरशिप्स का क्रियान्वयन, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी 12 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो ये स्लाइड में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट बसंत जी। तो ये जो एसडीजी 12 को कई क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बिंदु रूप में उभर के सामने आते हैं। जैसे can you increase the size of the slide if it's possible? Not possible. Okay, just hold on then. Let me open my own presentation. I have it in front of me. Just a minute. That better, Tejinder? Yes, that is slightly better, but I have also opened my own this thing. So जैसे मैंने कहा कि 2 राज्यों में ये प्रयास किया गया है और देखा ये गया है कि जिस तरीके से हम सामान्य रूप से प्लानिंग करते हैं उसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। जो हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन को हमें ध्यान नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं अब हमें ये लगातार देखना पड़ेगा कि जैसे ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रयास कर रहे हैं, जो सोशल कैपिटल और सोशल गुड्स हैं उनके बारे में हम क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। और दूसरा, जो बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन हो रहे हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जैसे जिन बिंदुओं पे आज हम बात कर रहे हैं या जो हमारे साथी फील्ड से अपना अनुभव दर्शा रहे हैं, अब शायद उन पे ज्यादा केंद्रित होने की आवश्यकता है। एक जो मुद्दा सामने आ रहा है कि केवल अनुपालन जो है नीति और विनियमों के माध्यम से नहीं हो सकता, कि नॉर्मेटिव अंडरपिनिंग्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ईएसजी के प्रावधान हैं, सिर्फ सारा सप्लाई साइड से नहीं चलेगा, मांग पक्ष और भी आवश्यक है। और इस बात को तो खैर दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार शुरू के वक्ताओं ने भी कहा कि भारतीय परंपरा में स्थिरता के मानक आधार का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और सभी धर्मों में धर्म और नैतिक संहिताओं में मंजूरी से लेकर अनुपालन में इसको ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और अब तो कंपनी के बोर्ड वगैरह भी ये सवाल पूछने लग गए हैं कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में, पानी के ऊपर आपके जो इंडस्ट्रियल एक्शन है उसके प्रभाव के बारे में आप क्या कर रहे हो। तो इन चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है। नेक्स्ट बसंत जी। तो ये अब हम बात करेंगे कि जो 2 राज्यों में कार्य किया गया, ये जो एसडीजी विजन बनाई गई उसमें एसडीजी 12 के बाबत कैसे कार्रवाई की गई। तो छत्तीसगढ़ ने अपनी एसडीजी विजन एक्शन प्लान में पहले तो वैश्विक विमर्श को समझने की कोशिश की कि ग्लोबल थिंकिंग क्या है, और फिर उस थिंकिंग को या उस समझ को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ में क्या करने की जरूरत है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए और क्या जरूरतें होनी चाहिए जिनको हम एक फास्ट रूप से इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन की ओर ले जा सकें। तो जैसे सूरज कह रहे थे कुछ देर पहले कि अनिवार्य रूप से जो फोकस है सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट पर होना चाहिए, दोहन और संरक्षण में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में
भूमि, जल, जंगलों के उपयोग को और अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ के एसडीजी विजन में किया गया। इसके 3 प्रमुख क्षेत्रों में संसाधन का उन्होंने ध्यान दिया। एक तो उत्तरी कोयला युक्त जो सरगुजा का क्षेत्र है, फिर जो महानदी घाटी के क्षेत्र हैं, और जो केंद्रीय कृषि मैदान और दक्षिणी आयरन ओर और माइनिंग का एरिया है, जो बस्तर का पठार कहलाता है। तो इसने तीनों क्षेत्रों को टिकाऊ और उपभोग और उत्पादन के दायरे में रखा और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाई। तो ज्यादा ध्यान दिया गया ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर, नवीनीकरण ऊर्जा पर और उत्पादन प्रक्रियाओं तक, पारगमन तक। फिर योजनाओं, ये प्राकृतिक संसाधनों में सभी परिहारीय अपशिष्टों और संदूषण को समाप्त करना। और तीसरा जो मुख्य केंद्रित बिंदु था वो था शहरी क्षेत्रों के लिए ई वेस्ट सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना। नेक्स्ट slide, if you move to the next slide. Yeah, please move to the next slide now. Yeah. That's what. Yeah. Okay. Yeah, and you can skip this one. I have already covered it. Yeah. So you need to tell me. Okay, I'm sorry. तो छत्तीसगढ़ में जो चैलेंजेस थे, एक मिनट, वो थे कि एक तो जो फॉरेस्ट कवर है, देयर इज अ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ड्यू टू कन्वर्जन। फिर एग्रीकल्चर का बहुत एक्सपेंशन हुआ है विच इज एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, और चराई के लिए और बालन के लिए लकड़ी का जो कलेक्शन है वो अंधाधुंध तरीके से हुआ है, जिससे कि फॉरेस्ट्री लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री के यूज के लिए लिया गया, माइनिंग के लिए लिया गया, माइनर और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए लिया गया। फिर जैसे जैसे विकास हुआ तो देयर वाज रिलीज ऑफ टॉक्सिक एफ्लुएंट्स बोथ इन द वाटर एंड इन द एयर। इन्वेसिव वीड्स, मतलब जब आप बाहर से उस किस्म के प्लांट्स को लाते हैं या सीड्स को लाते हैं जो वहाँ के लोकल नहीं हैं, तो कभी कभी वो जो इंडिजिनस सीड्स हैं उनका खात्मा होता है। फिर नेचुरल रीजेनरेशन जो है फॉरेस्ट लैंड्स का, उस पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बार बार मैन मेड फायर्स हुई हैं और एपिडेमिक्स से फ्लोरा और फौना को भी नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट वसंत। ओके, जस्ट अ मिनट। तो इन्होंने जो अपने लिए मुख्य लक्ष्य रखे वो दैट वाज इन द एरिया ऑफ फूड, कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को डबल करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सुदृढ़ करना और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट करना, फॉरेस्ट कवर से मुतल्लिक जो इश्यूज थे जो मैंने पहले दोहराए उनके ऊपर ध्यान देना, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एक्सपेरिमेंटेशन करना और इंश्योर करना कि वेस्ट जनरेशन कम हो। इसमें अंबिकापुर में बहुत अच्छा काम हुआ। मिनरल्स के बाबत सस्टेनेबल माइनिंग प्रारंभ की जाए और क्या इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था में, संस्थागत व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए जाएं ताकि माइनिंग और सतत और सस्टेनेबल हो सके। सिमिलरली पानी और एनर्जी के लिए भी उन्होंने लक्ष्य रखे। नेक्स्ट वसंत। तो इसको लेके 5-6 चीजें पर फोकस किया गया। फर्स्ट वाज टू एनकरेज कम्युनिटी बेस्ड एक्शन फॉर एक्विफर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी रोल फॉर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर की रिसाइकलिंग को, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था और अर्बन वेस्ट था उसके लिए प्रावधान किए गए। कई सारी चीजों का तय किया गया कि किनको मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें वेटलैंड्स हों, रिवर सिस्टम्स हों, लार्ज वाटर बॉडीज हों,
उन पर सतत निगाह रखी जाए कि स्थिति और खराब नहीं हो रही है, और जो कार्य बिंदु निश्चित किए गए हैं वो किस तरह से जमीन पर उतर रहे हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कुछ चीजें रखी गई स्किल डेवलपमेंट में, जैसे सीड प्रोडक्शन पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, कंपोस्ट प्रोडक्शन पे, सॉइल हेल्थ कार्ड्स का प्रावधान रखा गया। ये 37,46,000 फार्मर्स को ये दिए गए ताकि वो समझ सकें कि रिकमेंडेड डोज क्या है, कितना फर्टिलाइजर लगाना चाहिए, जिससे कि अनुमान था कि 5% के लगभग प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट बसंत। दूसरा जो राज्य हम मेरे साथियों ने और मैंने कुछ हद तक इस पे काम किया। हेलो, ओके, वो था त्रिपुरा, जिसमें था सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जिसको अचीव करना था साफ नियत और सही विकास से। इसमें 3 मुख्य बिंदु थे। एक तो था इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनेबल डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट and encouragement of management of water resources and biodiversity with a focus on scheduled tribe dominated areas. अब आप देखेंगे कि जो इनका फोकस था त्रिपुरा में और जो फोकस छत्तीसगढ़ में था वो भिन्न था, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं भिन्न हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ थी कि जो प्लानिंग की गई देश में, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अपनी योजना बनाएं। नेक्स्ट। इसी तरीके से फिर त्रिपुरा ने जो एक्शंस लिए वो थे एनर्जी के बाबत, ड्रिंकिंग वाटर के बाबत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स बनाए गए, फूड वेस्ट, खाने की जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए किस तरह से अवेयरनेस जनरेशन की जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए कि क्या करना है क्या नहीं। I think we can go a little fast with this because it's okay, you can go to the next slide then. ये जो स्लाइड है ये डिजिटल इंडिया की स्लाइड है, जिसमें हम ये देख सकेंगे कि डिजिटल इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो सॉइल के एरिया में हो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के एरिया में हो, BSNL और वाईफाई के एरिया में हो। तो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि SDG 12 ऐसा SDG है जिसका हर दूसरे SDG पे प्रभाव पड़ता है। तो ये अपने आप में जो इस एरिया में विकास हुआ है डिजिटल इंडिया में, ये सराहनीय है। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना था कि डिजिटलाइजेशन से एफिशिएंसी गेन्स तो बहुत हैं, लेकिन इससे एनर्जी डिमांड्स बढ़ती हैं, जिससे पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जिसका थोड़ा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑन टू माय लास्ट स्लाइड प्लीज। नो, आई हैव 2 more slides, sorry, I have forgotten. तो वेरी क्विकली कुछ कंक्लूजन्स ये थे कि जो फ्रेमवर्क है इस SDG 12 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, वो ऑलरेडी अच्छी तरह स्थापित हो चुका है, चाहे वो हमारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में हो, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने पुरजोर तरीके से दर्शाया, फिर चाहे वो पॉलिसी या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पोल्यूशन कंट्रोल, इंसेंटिव्स, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोटेक्शन के बारे में हो, और तीसरा जो ये ESG के पिलर के तहत रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की हों, प्रोडक्ट क्वालिटी ब्रांडिंग की हों, जिसका लगातार अब रिव्यू होने लगा है बोर्ड लेवल पे, इससे बहुत फर्क पड़ने की उम्मीद है। लास्ट माइल में अभी काफी काम होना बाकी है। जो हमारी स्पिरिचुअल और एथिकल और फिलोसॉफिकल धरोहर है हमारे देश की, हम उसकी बात ज्यादा करते हैं लेकिन पालन कम करते हैं। और SDG भी अब एक अपने आप में इंडस्ट्री हो गई है, जिसमें हम व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश चेकलिस्ट और बॉक्स टिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है मेरे। और लास्टली आई वांट टू से कि जिस तरह के आज हमने वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड सुने, उनके नेटवर्क को बनाने की अभी बहुत आवश्यकता है।
बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान ऑलरेडी हो चुके हैं और जिनका प्रसार प्रचार करने की और आवश्यकता है। नेक्स्ट बसंत, ये गांधी जी का एक कोटेशन है, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, मैं यहाँ इसको छोड़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तेजेंद्र सर। होती है और मन नहीं कर रहा था कि कंक्लूड किया जाए, पर समय की हम लोगों के साथ सीमा है। अभी शरदोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ चित्रकूट में शुरू होने वाला है, हमारे अतिथि लोग भी यहाँ आ चुके हैं। तो अब कंक्लूजन के लिए बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आदरणीय डॉक्टर शेषाद्री चारी जी अपने साथ जुड़े हुए हैं। चारी सर आप हैं? डॉक्टर शेषाद्री चारी जी। जी, कैन यू हियर मी? जी सर। बहुत छोटा मैं आपका एक परिचय दूंगा। डॉक्टर शेषाद्री चारी इज एन एलुमन ऑफ मुंबई विद्यापीठ, then it was a Bombay University. He did his BCom, LLB and MA from this place. He is the governor's nominee in the Managing Council of Mumbai University. He is also a member of Governing Council of Research and Analysis Information System, RIS, an autonomous institution under the Ministry of External Affairs. He is the mentor of this whole thing that we are doing. तो मैं बस उनसे ही निवेदन करूंगा कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसमें दें आज की 6वीं इस वेबिनार के बारे में, और फिर हम लोग भी सब मिलकर नाना जी का जन्मदिन पूर्णिमा के आज यहाँ मनाते हैं। आप लोग भी अपने अपने यहाँ खीर खाइएगा आज के दिन। आदरणीय डॉक्टर शेषाद्री चारी जी। Thank you for that kind introduction and those kind words. Only one correction, sir. I'm not the mentor and all that. आपने बहुत बड़ा शब्द उपयोग कर दिया, and you are the real heroes behind this whole program. हम तो सिर्फ एक छोटा सा धक्का देने का काम किया, और मुझे भी खुद आश्चर्य लगा कि ये चल पड़ा। So that is something very great that we are all doing together. और पिछले फरवरी में जो कार्यक्रम हुआ था SDG के बारे में और उसको लेकर, उसके बाद काफ़ी चर्निंग हुआ है, और उसके बीच ये G20 का भी कार्यक्रम हो चुका है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा G20 में उसके पहले भी और उसके बाद में भी ये 2-3 बातें बहुत आगे आए हैं, वो यानी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी पिछले दिनों 10 दिन पहले हमारे RIS में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, एंड IPSA कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे, क्योंकि जैसे भी मैंने पहले भी आप लोगों से इस बात पर चर्चा हुई थी, भारत की प्रेसिडेंसी के बाद ये प्रेसिडेंसी गई है ब्राज़ील के पास, और ब्राज़ील से जाएगी साउथ अफ्रीका के पास। तो भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों मिलके IPSA बनती है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका कंट्रीज। सो वास्तव में हमारे लिए G20 समाप्त नहीं हुआ, हमारे लिए G20 इनफैक्ट ये और 3 साल चलेगा। सो 23, 24, 25, 26 तक ये चलेगा, और 26 के बाद सिर्फ 4 साल बचेंगे G20 को SDG को रियलाइज करने के लिए। मतलब 2030 इज द डेडलाइन। तो 2020 तक हम कितना कर पाएंगे, यानी पूरे दुनिया में अगर हम देखेंगे तो 20-30%, 40%, 50% भी अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वो भी कभी कभी मुश्किल लग रहा है बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज, हम लोग सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ है। अब उसके साथ साथ अभी इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो वो उस क्राइसिस को, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक क्राइसिस को एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो SDG है। इसीलिए हमें भारत के नाते एक विचार करना पड़ेगा कि हम जहाँ तक SDG के संबंध हैं, हम दुनिया पर कितना डिपेंड रह सकते हैं, दुनिया पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, ये पहली बात हमें सोचना होगा। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दुनिया पर छोड़ दें इसको तो नहीं होगा। दूसरी बात हमें ये सोचना पड़ेगा कि SDG के फायदे जो हैं वो भारत को होता है, रीजन को होता है, और बाकी दुनिया भर को होता है।
तो जहाँ तक दुनिया और रीजन का मामला है उसको थोड़ा सा साइड में रख दें, तो भारत के लिए एसडीजी अगर हम पूरा करेंगे तो कितना लाभ हो सकता है। आज की परिस्थिति में भारत की एक ऐसी स्थिति है कि आर्थिक स्थिति भारत की ऐसी है कि दुनिया भर में कम से कम 50 देश ऐसे हैं जो एक दिन, एक महीना भी अपना बजट को आगे नहीं ले जा सकते हैं, उनके इतने बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम ये कह सकते हैं कि वी हैव बीन एबल टू फीड मिलियंस, और हम एसडीजी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें एक तो एसडीजी में भी आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा और एसडीजी को पूरा करने की बात में भी हमको आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, आज अनेक ऐसे देश हैं, एक समय ऐसा था जब भारत डेटर्स की लिस्ट में आता था, यानी भारत एड लेता था, भारत लोन लेता था, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेता था। आज भारत देता है, आज भारत क्रेडिटर्स के लिस्ट में है, और हम जो क्रेडिट कमिटी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो क्रेडिट कमिटी है उसके मेंबर हैं। हम अभी रिसेंटली पिछले 15 दिन पहले श्रीलंका का जो क्रेडिट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्रेडिट कमेटी। इसीलिए हमारी स्थिति बदली हुई है। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति देखने के एक दृष्टिकोण, अलग सा दृष्टिकोण से देख रहा है, और हम जो करेंगे उस विषय को दुनिया फॉलो करने के लिए तैयार है। तो हमें एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस विषय को कैसे आगे ले जाएं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमने पंडित जी ने बहुत अच्छा एक प्रयोग शुरू किया है, वर्ल्ड एसडीजी फोरम। तो ये जो हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सब एक बहुत बड़ा जो हमारा प्रयत्न है उसका एक पहिया है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ ए वेरी बिग व्हीकल दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू रन। तो एक बहुत बड़ा जो जगन्नाथ का रथ है, उस रथ का ये जो पहिया, ये जो कार्यक्रम हमने किया पिछले साल भर, वो एक पहिया है। इसलिए हम अभी धीरे धीरे दिसंबर जनवरी 2 महीना हमारे सामने बाकी है, नवंबर दिसंबर जनवरी है, तो इन 3 महीने में हमें फरवरी में जो हमारा कार्यक्रम होगा उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमने जो विषय शुरू किया एसडीजी वर्ल्ड फोरम, इस वर्ल्ड एसडीजी फोरम को एक अच्छा रूप, मूर्त रूप कैसे दिया जाए, उसको एक ग्लोबल फोरम कैसे बनाया जाए, उसको एक ऑल इंडिया फोरम कैसे बनाया जाए, और उसका और नीति आयोग का संपर्क कैसे किया जाए, ब्रिज कैसे बिल्ड किया जाए, और आईएमएफ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक इस विषय को कैसे आगे ले जाएं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा, देयर इज अ वेरी बिग विंडो दैट इज ओपन टू अस, और इस विंडो का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं एंड हाउ बेस्ट वी कैन मेक यूज ऑफ द सिचुएशन, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विषय है। और वास्तव में पंडित दीनदयाल जी का जो विचार थे, उनका जो एक दृष्टि था, उनकी जो एक फिलॉसफी थी, और उस फिलॉसफी को कार्यान्वित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई वो नानाजी देशमुख। इन दोनों का एक प्रकार से देखा जाए तो आशीर्वाद, इन दोनों का अखंड आशीर्वाद हमारे पीछे है, और हम उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। और वो जिस प्रकार का इमेज, जिस प्रकार का एक विजन, जिस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने रखा है, उसे पूरा कैसे करें, इस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आई एम श्योर एक हमारा जो अभी टीम है उसमें और थोड़े लोगों को इकट्ठा करें, उन सभी लोगों के प्रयत्न से हम इस विषय में आगे जाएं, और इसमें हम सब प्रयत्न करें, यही मेरा विचार है। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।